the most cases the claim right are directed toward the state. This is true. This right people make demand upon the state. When I assert my right to education, I call upon the state to make provision for my basic education. Society may also accept the importance of education and contribute of it in its own. Different group may open school and fund scholarships so that children of all classes can get the benefit of education, but the primary responsibilities rest upon the state. It is state that must initial necessary step to ensure that my right of education is fulfilled. इस प्रकार हमारी राज्य सरकार कुछ खास तरीकों से काम करने के लिए कुछ दायित्व सौंपती है। प्रत्येक अधिकारी यह कहता है कि स्टेट के लिए क्या करने की योग्य है और क्या नहीं। फॉर एग्जाम्पल, हमें अपने जीवन जीने का अधिकार है। राज्य को ऐसे कानून बनाने के लिए ये बाध्य करता है कि दूसरों के द्वारा क्षति पहुंचाने की इच्छा को प्रकट करता है। ऐसे ही जो दूसरों की प्रतिशत करने, और यह हमारी स्टेट के राज्य की मांग भी करता है कि वह मुझे चोट या नुकसान पहुंचाने वाले दायित्व से मुक्ति दिलाए। कोई ऐसा समाज ऐसा महसूस करता है जिसमें जीवन जीने का अधिकार का मतलब कुछ अच्छे स्तर का या जीवन का अधिकार है। वह राजसत्ता से ऐसी नीतियों के अनुपालन की अपेक्षा करता है जो स्वस्थ जीवन के लिए, स्वच्छ एनवायरनमेंट के लिए आवश्यक जो फैक्टर्स हैं उसको बताने की ये कोशिश करता है। सेकंड शब्दों में हम यह भी कह सकते हैं कि हमारा राइट यहाँ राजसत्ता को कुछ खास तरीकों से काम करने के लिए कुछ वैधानिक दायित्व भी सौंपता है। Thus, the right place on the obliges upon the state and act in certain kind of way, which right indicate what is the state must be do, well as what is must not do. For instance, my right of life obliges the state to make law that protect me for injury by others. It call upon the state to punish those who hurt me and harm me. If a society feels that the right of life means a right to a good equality of life, it accept the state to pursue policies that provide for clean environment along with other conditions that may be necessary for a healthy life. In other words, my right her place certain obligation upon the state act and a certain way. सिर्फ अधिकारी यह नहीं बताते हैं कि राज्य को क्या करना, वो यह भी बताते हैं कि राज्य की कुछ नहीं करना है। मसलन किसी व्यक्ति की अगर फ्रीडम अधिकार कहता है, किसी व्यक्ति को इंडिविजुअल को अगर फ्रीडम का अधिकार है तो स्टेट में अपनी मर्जी से उसे अरेस्ट नहीं कर सकता, वह किसी भी सलाखों के पीछे उसे नहीं कर सकता। उसे इस कार्रवाई के लिए उसे जायज़ ठहराना पड़ेगा और उसको कोर्ट के सामने पेश करना पड़ेगा, तभी हम इस व्यक्ति की या इंडिविजुअल की फ्रीडम में कटौती करने का कारण बताना होगा। इसलिए मुझे पकड़ने के पहले गिरफ्तारी का वारंट दिखाना होगा। साथ ही पुलिस के लिए यह आवश्यक होता है कि इस प्रकार के राइट्स राजसत्ता पर अंकुश भी लगा सकते हैं। थस द राइट प्लीज द ऑब्लिगेशन कर सकते हैं। नाउ दूसरे, द राइट इज नॉट ओनली द इंडिकेट व्हाट इज द स्टेट मस्ट बी डू, आल्सो सजेस्ट व्हाट द स्टेट मस्ट refrain from doing. My right to liberty as a person, for instance, suggests that the state cannot simply arrest me it is own will. If it wishes to put me behind bar, it must be define the actions and must given reason for certain my liberty before a judicial court. This is why the police are requested to the product as arrest warrant and before the taking be me. My right thus police please certain and certain upon the state action कि अगर किसी व्यक्ति को इंडिविजुअल को पकड़ा जाता है तो पुलिस को पहले उसे ये वारंट दिखाना होता है कि इस कारण बस उसे पकड़ा गया है। Now we put the another way. इसको कहने का और भी तरीका है। Our right ensure that the authorities the state of exercise without violating the
sanctuary, the individual life and the liberty. The state may be sovereignty, authority, the law it may be ensured with force, but the sovereign state acts not for its own sake, but for the sake of the individual. It is the people who matter more, and it is their well-being that must be pursued by the government in power. The ruler and are accountable for their action and must not forget that law exists to ensure the good of people. लास्ट में हम ये कह सकते हैं कि हमारे राइट्स सुनिश्चित करते हैं कि राज्य की सत्ता व्यक्तिगत जीवन की स्वतंत्रता का मर्यादा का उल्लंघन किए बगैर काम करे। राज्य संपूर्ण प्रभु संपन्न सत्ता हो, उसके द्वारा निर्मित कानून बलपूर्वक लागू किए जा सकते हैं, लेकिन संपूर्ण प्रभु सत्ता राज्य का अस्तित्व अपने लिए नहीं बल्कि व्यक्तिगत हित के लिए होता है। इसमें जनता का ही अधिक इम्पोर्टेंस होती है और सरकार की और गवर्नमेंट को उसके वेलफेयर के लिए काम करना होता है। इसलिए जो रूलर्स होता है उसकी कार्यवाही के लिए ये जवाबदेह होता है। उसे हरगिज ये नहीं भूलना चाहिए, कानून लोगों की भलाई सुनिश्चित करने के लिए ही होते हैं।